Oh, hello. Next, we theorem is the fundamental theorem for linear system. This theorem is used to find the solution of initial value problem in which the initial condition is given. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा हमने अभी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पढ़ा. विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वी फाइंड द fundamental matrix e to the power 80 is known as a fundamental matrix. Therefore, this theorem is known as the fundamental theorem for linear system. How to define it? Let A be any n cross n matrix, and for a given x naught, it is belongs to R in n-dimensional space. The initial value problem x dot ax, x at 0 will be equals to x naught, has unique solution. Xt will be equals to e to the power 80 x naught. Okay. दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. एक्स डॉट विल बी इक्वल्स टू एक्स. इसका यूनिक सोल्यूशन जो होगा वो किस फॉर्म का होगा? e टू द पावर 80 एक्स नॉट. तो यहाँ रिक्वायरमेंट क्या होगी? अगर हम इसको प्रूव करना चाहेंगे तो हमारी ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? इस e टू द पावर 80 को फाइंड आउट करना. और जहां पर ए क्या है? n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है. प्रूफ करते हैं. The initial value problem x dot ax, the initial value problem x dot ax where x at 0 will be equals to x naught. हमें ये पता है कि d over dt of e to the power 80 क्या होता है? a e to the power 80. यहाँ आपको प्रूफ करना है, वहाँ हमने प्रूफ कर दिया है. This shows that the matrix x e to the power 80, ये क्या शो करेगा कि मैट्रिक्स जो दी हुई है e to the power 80 is solution of the matrix differential equation x dot will be equals to ax. x डॉट ए एक्स का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर 80 हो जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर 80. वी ऑलरेडी डिफाइंड दैट e टू द पावर 80 इज फंडामेंटल मैट्रिक्स. नाउ xt विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर 80, बिकॉज xt हमने सोल्यूशन कंसीडर किया तो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर 80 x नॉट. x डॉट t क्या हो जाएगा? पूरे इस टर्म का डेरिवेटिव. अगर हम पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इट विल बी इक्वल्स टू a e to the power 80 x naught. e to the power 80 x naught is e to the xt, तो a times xt. यानी ये क्या शो कर रहा है? for all t initial value, it means xt will be equals to e to the power 80 x naught is our solution, because x dot t हमने सोल्यूशन लेके चले थे और डिफरेंस हमने ये कंसीडर किया था कि ये सोल्यूशन, और हमने क्या प्रूव कर दिया? we get the required differential equation from this solution. It means it is a solution. The given equation is solution of the given linear system. Now we show that this solution is unique. तो for uniqueness हमने ये कंसीडर किया कि yt उसका एक और दूसरा सोल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, और वो yt किस फॉर्म का है? e टू द पावर माइनस 80 xt. xt सोल्यूशन है ऑलरेडी और yt दूसरा सोल्यूशन है इसका. तो इसको डिफरेंशिएट किया y डॉट टी minus a e to the power 80 xt as it is plus e to the power minus 80 x dot t. First term as it is, x dot t is system, तो a xt, x dot will be equals to ax, तो यहाँ सब्सटीट्यूट किया, दोनों टर्म कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 0. ये क्या इम्प्लाई करेगा? डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, यानी yt क्या है आपका? कांस्टेंट सोल्यूशन. दिस इम्प्लाइज दैट yt इज कांस्टेंट. एट t इज इक्वल्स टू 0, when we substitute t is equals to 0, yt will be equals to x naught. So any solution of initial problem is given in that form, xt e to the power 80 yt, and yt is x naught, यानी कि e to the power 80 x naught. तो same solution आ गया. It means the solution is unique, which is of that type xt will be equals to e to the power 80 x naught. If we have the linear system, x dot will be equals to ax. This is our fundamental theorem. Solve the problem on using this theorem. ये आपको मैट्रिक्स, ये सिस्टम दिया है, x dot will be equals to ax. A is 2 cross 2 matrix and initial condition क्या? x 0 will be equals to 1 0. मैट्रिक्स क्या है? -2 डायगोनल के एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट. बहुत सिंपल सा है. फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर हमारी सिस्टम x dot t ax फॉर्म का है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन क्या होगा इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का? xt e टू द पावर 80 x नॉट. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ और सिर्फ हमारा अप्रोच हो जाएगा e टू द पावर 80 फाइंड आउट करने का. अब देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए दी हुई है वो किस फॉर्म की दी हुई है? लास्ट केस कॉलरी 3, लास्ट केस जहाँ पर मैट्रिक्स थी ए डायगोनल के एलिमेंट सेम,
नॉन डायगोनल एलिमेंट बी एंड माइनस बी, उसी टाइप की है। तो ये मैट्रिक्स का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर बी सेम टाइप की है तो सोल्यूशन क्या होता था? ई टू द पावर 80 साइन बी टी कॉस बी टी माइनस साइन बी टी साइन बी टी कॉस बी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इज -2 -1 1 -2, डायगोनल के एलिमेंट ई टू द पावर -2t, a is -2, b is 1 लिख दिया यहाँ पर, -2t एंड cos t माइनस sin t sin t cos t। तो सोल्यूशन देखो दो स्टेप्स में आ गया। xt क्या हो जाएगा? पूरा 80 और x0, e टू द पावर -t cos t माइनस sin t sin t cos t, और इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई x0 की वैल्यू 1,0 है। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos t 0 sin t नेक्स्ट में 0, तो cos t अपॉन sin t, ये आ जाएगा आपका सोल्यूशन। यानी अगर ये x1 x2 लिखते हैं तो हमारा पहला सोल्यूशन क्या आ जाएगा? x1t विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर -t cos t, x2t विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर -t sin। यहाँ पर t के टर्म्स में दोनों ही नेगेटिव हैं, यानी हमें क्या मिल रहा होगा? स्टेबिलिटी मिल रही होगी। अगर फेस पोर्ट्रेट प्लॉट करना चाहे तो मॉड ऑफ xt क्या आ जाएगा? e टू द पावर -t, क्योंकि मॉड ऑफ cos t इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0, sin t maximum value of cos t and sin t is 1। एंगल क्या आ जाएगा? नेगेटिव टर्म आ रहा है, t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, xt अप्रोचेस टू 0, यानी कि ओरिजिन की तरह भी अप्रोच कर रहा होगा। नाउ थीटा t विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x2 अपॉन x1, यानी कि x2 इज दिस थिंग एंड x1 इज, तो ये t आ जाएगा। थीटा विल बी कोरिलेट विद t, यानी कि ये क्या आ जाएगा? स्पाइरल आ जाएगा, which shows that solution is spiral which approaches to the origin. This is the solution and this is the phase portrait. Now next problem set क्या है? Use the forms of the matrix e to the power bt, solve the linear system x dot will be equals to bx। अब यहाँ पर क्या है? इस सिस्टम को सॉल्व करो, x dot will be equals to bx and b is of these three kind। बहुत सिंपल है, पहला सोल्यूशन b का वही सिंपल सा है, x डॉट बी एक्स, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बाय फंडामेंटल थ्योरम एक्स टी ई टू द पावर बी टी एक्स नॉट। ठीक, तो e टू द पावर बी टी क्या हो जाएगा? ये पहला लैम्डा e टू द पावर लैम्डा टी 0 0 e टू द पावर म्यू टी, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स टी ई टू द पावर लैम्डा टी 0 e टू द पावर म्यू टी एंड 0 एक्स नॉट, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। एक्स नॉट को हमने एक्स नॉट 1 एक्स नॉट 2 ले लिया, बिकॉज एक्स नॉट इज इनिशियल कंडीशन, कुछ वैल्यूज दी होंगी तो हमने एक्स नॉट 1 एक्स नॉट 2 ले लिया और सॉल्व किया, तो एक्स नॉट 1 e टू द पावर लैम्डा 2 एक्स नॉट 2 e टू द पावर म्यू टी, यानी सोल्यूशन क्या आ गया? x1t विल बी इक्वल्स टू x नॉट 1 e टू द पावर लैम्डा t एंड x2t x नॉट 2 e टू द पावर म्यू टी। नेक्स्ट एग्जांपल, here म्यू इज नॉट, बार बार वही गलती कर रहे हैं। यहाँ पर लैम्डा है, डायगोनल के एलिमेंट सेम है, b इज लैम्डा लैम्डा 0 1, तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर सेम e टू द पावर लैम्डा t 1 t 0 1। ठीक है, वही केस है सिंपल। अब यहाँ क्या हो जाएगा? सोल्यूशन ये आ जाएगा, x नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, यू गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सिमिलरली सेक्शन सी कैन बी सॉल्व। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन, उसमें तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखिए आप, सब बहुत सिंपल सा है, सीधा सीधा केस यूज करिए, सिंप्लीफाई करिए। सॉल्व द लीनियर सिस्टम x डॉट a इज अ मैट्रिक्स इनटू x, a इज -1 -1 1 1, डायगोनल के एलिमेंट -1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो सीधा सीधा e टू द पावर 80 क्या हो जाएगा? e टू द पावर -t cos t माइनस sin t sin t cos t। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? यूनिट बाय फंडामेंटल मैट्रिक्स xt e टू द पावर 80 x नॉट, सब्सटीट्यूट कर दिया e टू द पावर 80 की वैल्यू और x नॉट सब्सटीट्यूट कर दिया जो भी गिवन है, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, यू गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये क्या है? फाइंड फंडामेंटल मैट्रिक्स e टू द पावर 80 एंड सॉल्व लीनियर सिस्टम x डॉट ax इज इक्वल फॉर a इज 3 3 1 1। ओके, a is 1 1 and 3 3। अब स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, जब आपको स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दिया होता है तब हम क्या करते हैं? आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, बाय फंडामेंटल मैट्रिक्स, बाय फंडामेंटल थ्योरम सोल्यूशन तो यूनिक होगा, x3 विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर 80 x नॉट, बट हियर a इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक 3 केसेस,
डायगोनल के एलिमेंट सेम है, यहाँ 1 1 है, ठीक। वहां पर क्या था, माइनस होना चाहिए, एक टर्म को माइनस होना चाहिए, तो वो यहाँ पर है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है, अगर सिस्टम ये है तो फंडामेंटल से सोल्यूशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि वो स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं है, तो e टू द पावर at क्या होता है, p e टू द पावर bt p इनवर्स, यानी सोल्यूशन क्या हो जाएगा, p e टू द पावर bt p इनवर्स x नॉट। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई विल बी इक्वल्स टू 0, यानी 3 माइनस लैम्डा 1 1, 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, व्हेन यू सिंप्लीफाई इट लैम्डा इक्वल्स टू 2 वैल्यू, थोड़ा सा बहुत लाइट हो गया, लैम्डा हैज 2 वैल्यूज 4 and 2 are 2 eigen values. Now corresponding eigen vectors as lambda is equals to 2. For lambda equals to 2, आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, a माइनस लैम्डा आई एक्स विल बी इक्वल्स टू 0 के इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लैम्डा को 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 3 माइनस 2 1 1, 3 माइनस 2 x1 x2 0। इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रही होगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2। ये सारी चीजें आपको आती हैं करना, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना। x2 इज 1, देन x1 इज माइनस 1, तो b1 क्या आ गया, 1 एंड माइनस 1। इसी तरह लैम्डा की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे सेम इक्वेशन में, वी गेट द इक्वेशन माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड आइगन वेक्टर्स आर 1, 1। तो कैपिटल P क्या आ जाएगा, 1 1 माइनस 1 1, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। मॉडुलस क्या आ जाएगा P का, हमने डिटरमिनेंट निकाला P का, तो इट विल बी इक्वल्स टू 2। नाउ P इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, 1 1, नॉन डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज किया, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, तो ये आ गया हमारा P इनवर्स। नाउ P इनवर्स AP कैलकुलेट करो। P इनवर्स AP जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, डायगोनल ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, यानी क्या आ जाएगा, P इनवर्स AP इज पहला आपका डायगोनल का एलिमेंट 2 0 0 4, तो e टू द पावर 80 क्या हो जाएगा, e टू द पावर 80 इज P इनवर्स e टू द पावर AT एंड P इनवर्स, तो e टू द पावर 2t 0 0 e टू द पावर 4t। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, xt p e टू द पावर AT p इनवर्स x नॉट। हमने et इसलिए लिखा क्योंकि आपने पहले लीनियर सिस्टम का जब जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा था तो वहां et लिखा होता है, तो हमने इसी मैट्रिक्स को et सब्सटीट्यूट कर दिया। सेम थिंग आगे p e टू द पावर AT p इनवर्स x नॉट, p की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, p इनवर्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट की और et की वैल्यू सब्सटीट्यूट की एंड मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। P 1/2 कॉमन ले लिया, P ET P इनवर्स एंड दिस थिंग, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, यू गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया, मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म ये आ जाएगा, दूसरा टर्म ये आ जाएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा। हमने क्या किया, e टू द पावर 3t से मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइमल्टेनियसली डिवाइड करेंगे, तो वही सारे टर्म e टू द पावर 2 माइनस 3 4 माइनस 3, हर एक में e टू द पावर 3t सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4 एंड सो ऑन। सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन है, कुछ और है नहीं। जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस टी e टू द पावर 3t कॉमन हो जाएगा और 2 को यहाँ लेके आ गए, इनसाइड कर दिया, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल वाले टर्म जो है वो किसमें, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉस हाइपरबोलिक टी, साइन हाइपरबोलिक टी, साइन हाइपरबोलिक टी एंड कॉस हाइपरबोलिक टी एक्स नॉट। ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन गिवन लीनियर सिस्टम का फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल खुद से करिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 में दिया गया है, ये आपकी मैट्रिक्स ए है और कह रहे हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, यूनिक सॉल्यूशन इज xt e टू द पावर 80 x नॉट। अब a इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, डायगोनल होता तो डायरेक्टली यूज कर लेते। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही पूरा वर्क, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे।